everyone, and welcome to Vision Civil Service. So, as you all know, we provide coaching in IS, PCS, and other competitive exams. We have teachers who have experience of many years in the same field, and also we provide free demo classes for students who want to enroll in our institute. You can also visit us in our institute or through our website of Vision Civil Services. Secondly, talking about students who can't come continue to attend the class, we also have weekend batches available for them. And moving forward, I also want to tell us about the director of our institute, Mr. Anil Kumar sir. And when we talk about Vision Civil Services, we are very, you know, there for you whenever you need us. Okay, and जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो they can approach us and they should feel free to talk to us about anything they feel like, about exams, about the syllabus, about various subjects, CSAT, or any other issue they are facing in the institute or outside it and related to studies. Moving forward with our topic where we left off August current affairs, we'll move forward from where we left the topic and discuss various topics that were left in the PDF. Okay. So before moving forward, I would request you all to please like, share, subscribe our channel for more such videos, because we are bringing many such videos for you on various topics related to current affairs, related to polity, history, economics, and many more. So do subscribe our channel so that you can have more such videos. Okay. Moving forward with the topic from where we left, last topic which we discussed was about Goen Vinay Mulya with Yevajim. Okay, now we'll talk about next topic. Okay, ADB provides $200 million loan for solid waste management in India. So when we talk about ADB, it is called Asian Development Bank. Okay, and it has committed $200 million, that is approximately 1,700 crores in Indian rupees, and the loan is to improve solid waste management. When we talk about solid waste management, you know what is that? It is the waste produced by human waste. Okay, and sanitation. So the main focus of the loan is to improve solid waste management and sanitation in 100 cities across 8 states in India. It is not covering all the states, you need to remember this. It is only covering 8 states of India. Okay, and 100 cities. This funding is part of the Swachh Bharat Mission 2.0. You know, first we had Swachh Bharat Mission 1 and now we have Swachh Bharat Mission 2.0. So this solid waste management program is in Swachh Bharat Mission 2.0 and Comprehensive Municipal Waste Management India Cities program. Okay, you also need to know about Swachh Bharat Mission 1.0. Okay, next, Google CEO Sundar Pichai. All over you know that Google का CEO कौन है? Sundar Pichai, with honorary doctorate from IIT Kharagpur. तो IIT के बारे में तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे IITs हैं इंडिया में. One of them is IIT Kharagpur. तो उनमें what is the news about? It is that IIT Kharagpur has given doctorate honorary to Google CEO Sundar Pichai. In a momentous occasion that bridged Silicon Valley and prestigious halls of Asian academia, Google and Alphabet CEO सुंदर पिचाई. सो अल्फ़ाबेट एक गूगल के नीचे उसकी सब कंपनी बोल सकते हैं हम, क्योंकि गूगल ने क्या किया है, बहुत सारी कंपनीज़ को अपने अंडर लिया हुआ है. मतलब बहुत छोटी छोटी कंपनीज़ होती है ना, वो एक बड़ी कंपनी के अंडर आती है, तो वैसे ही अल्फ़ाबेट भी उसी का पार्ट है. Sundar Pichai and his wife Anjali Pichai were honored by their alma mater, the Indian Institute of Technology, Kharagpur, IIT Kharagpur. The ceremony held in San Francisco marked a significant milestone in couples' already illustrious careers and underscored the global impact of India's premier technology institute. तो ये एक हम बोल सकते हैं एक माइलस्टोन है, क्योंकि एक लिंकेज बना रही है ये
किसके बीच में, एक तो यूएस के बीच में और एक इंडिया के बीच में, और हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में वो बता रही है, क्योंकि सुंदर पिचाई इज़ इंडियन बेस्ड बेसिकली, ठीक है, उनकी वाइफ भी, तो ये उनके करियर, उनकी लाइफ टाइम के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बोल सकते हैं हम इसको। तो ये इंडिया, क्योंकि आईआईटी उनको एक वो दे रही है, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आईआईटी ने उनको, आईआईटी खड़गपुर ने उनको क्या दिया है, ऑनररी वो दिया है, अवार्ड। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला लेगेसी साइट्स इंस्क्राइब्ड एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। यू ऑल नो अबाउट यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका पार्ट है, इट इज़ पार्ट ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस का ये पार्ट है, ठीक है, उसकी एक बॉडी है। In a momentous decision that celebrates the life and legacy of one of the most revered leaders, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has inscribed several iconic South African sites associated with Nelson Mandela as World Heritage Site. तो यूनेस्को ने क्या किया है कि उन्होंने कुछ साउथ अफ्रीकन साइट्स जो कि नेल्सन मंडेला से कनेक्टेड है, यू नो अबाउट नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम, ब्लैक्स के अगेंस्ट जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट लड़ा है। तो उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी साइट्स हैं जो बहुत आइकॉनिक है, वेदर इट बी रिलेटेड टू हिट्स मूवमेंट्स, उनके कुछ वर्क से रिलेटेड, तो ऐसी कुछ साइट्स हैं जिसको यूनेस्को ने क्या डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में उसको डाला है। ओके, दिस रिकग्निशन अनाउंस ड्यूरिंग द 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। कौन से सेशन में इनको इंट्रोड्यूस किया गया, अनाउंस किया गया, 46 सेशन में, ओके, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है, ओके, and marks a significant milestone in preserving the memory of South Africa's journey from apartheid to democracy. As I said कि apartheid के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो उसी की जर्नी, उसी की एक मेमोरी को दर्शा रहा है ये चीज़, ठीक है, कि हमने उनको रिकग्नाइज़ किया है कि उन्होंने जो ब्लैक्स के लिए किया है उसको रिकग्निशन देते हुए यूनेस्को ने ये स्टेप उठाया है, उनकी जर्नी को दिखाते हुए कि उन्होंने अपार्थाइड से लेकर डेमोक्रेसी का जो रास्ता बनाया है ब्लैक्स के लिए, ठीक है, उसको ये कन्वे कर रहा है, उसको दिखा रहा है, ओके, प्रिजर्व कर रहे हैं उनकी मेमोरी को। नेक्स्ट, India retains 8th position in global agriculture exports in 2023. India held on to its position as the world's 8th largest exporter of agriculture products in 2023. India ने अपना एक दर्जा बना लिया है as the world's 8th largest exporter. You know, it's a big deal. 8th largest exporter का उन्होंने एक पोजीशन ले ली है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, वो भी in 2023 despite a decline in exports from $55 billion in 2022 to $1 billion, ठीक है, पहले जो उनका डिक्लाइन हुआ था उससे अब इन्होंने एकदम पोजीशन ले ली 8th की, तो दैट्स अ बिग स्टेप, यू नो, एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए भी। This stability comes amid a general decrease in agriculture export among 7 of the top 10 exporting nations. और हमने ये स्टेबिलिटी कब लिया, जब हमने देखा है कि कुछ 7 टॉप जो कंट्रीज़ थी, 10 एक्सपोर्टिंग जो नेशंस है, उनके जब एक्सपोर्ट्स में हमने डिक्रीज़ देखा है, वहीं पे इंडिया के एक्सपोर्ट में हमने एकदम से इंक्रीज़ देखा है। तो इंडिया ने बहुत अच्छा एक मतलब पोजीशन गेन करी है इस उसमें, ओके। Indian WHO signed landmark agreement for Global Traditional Medicine Center. On July 2024, a momentous event took place at World Health Organization headquarters in Geneva. आपको UN के जितने भी बॉडी या ऑर्गन्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है, उनके मेन हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, ओके। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष आपको पता होगा, आयुष एक गवर्नमेंट ने हमारे स्टार्ट किया था जिसमें कि आयुर्वेदा, यूनानी, ठीक है, होम्योपैथिक, ऐसी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल्ड अ क्रूशियल डोनर एग्रीमेंट। तो आयुष और WHO ये इन्होंने क्या किया है, साइन किया है क्रूशियल डोनर एग्रीमेंट। This agreement outlines the financial terms for implementing the activities of WHO Global Tradition Medicine Center in Jamnagar, Gujarat. तो ये
ये जो एग्रीमेंट हुआ है ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एक आउटलाइन बना रहा है कि कैसे जो कि एक्टिविटीज़ होंगी उनका क्या फाइनेंशियल टर्म्स होंगे, कितने पैसे लिए जाएंगे, क्या उनका सिनेरियो होगा, ओवरऑल कैसे फ्रेमवर्क होगा, कैसे काम करेंगे, जो कि जामनगर में जो उन्होंने ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर गुजरात में बनाया है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। ओके। Gujarat unveils GRIT, a new era in state level policy planning. Okay. In a significant move towards enhancing Gujarat's development trajectory, Chief Minister Bhupendra Patel, Chief Minister आपको पता होना चाहिए भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है, has announced the creation of Gujarat State Institution of Transformation GRIT. GRIT का फुल फॉर्म है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, अ स्टेट लेवल थिंक टैंक मॉडल आफ्टर नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है, एक नेशनल लेवल बॉडी है, ओके, जबकि ग्रिड क्या है, स्टेट लेवल बॉडी है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नीति आयोग को किसने रिप्लेस किया था, मतलब नीति आयोग ने किस बॉडी को रिप्लेस किया है, नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। जो प्लानिंग कमीशन हमारे 5 ईयर प्लान्स बनाती थी उसको रिप्लेस करके 2014 में हमने बनाई थी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। This announcement came during the नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यू ऑल शुड नो कि जो नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है उसकी जो मीटिंग होती है चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं हमारे। उन्होंने उसके दौरान इसको अनाउंस किया है, मार्किंग अ न्यू चैप्टर इन गुजरात अप्रोच टू पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ग्रास रूट लेवल, स्टेट लेवल प्लानिंग में ये बहुत बड़ा स्टेप है कि गुजरात ने इसको फॉर्मुलेट किया है, इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया है, ओके। Next, Indian-Vietnam partner on maritime heritage complex in Lothal. Okay. India and Vietnam have partnered to develop the National Maritime Complex NMHC in Lothal, Gujarat, reflecting their deep maritime connection. तो इंडिया और वियतनाम ने एक पार्टनरशिप किया है जहाँ पे उन्होंने NMHC एक कॉम्प्लेक्स बनाया है गुजरात में, जिससे कि वो अपने मैरीटाइम कनेक्शंस को डिस्प्ले करेंगे। The MOU, Memorandum of Understanding, signed at Hyderabad House in Delhi, marks a significant step in the collaborative effort which aims to preserve and celebrate the shared maritime heritage of both nations. तो ये जो Memorandum of Understanding दोनों के बीच में है, ये क्या डिस्प्ले करेगी कि हमारे उनके साथ क्या टर्म्स हैं, हम उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स दिखाएगा इंडिया के और वियतनाम के, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉन्ड काफ़ी सालों पहले से, ठीक है, अभी का नहीं है, एकदम इंस्टेंट नहीं है, बहुत सालों से हम लोग का कोलैबोरेशन चल रहा है, ठीक है। और ये हमारा शो करेगा कि हम दोनों की जो मैरीटाइम हेरिटेज है, मतलब कितने साल पुराने से जो हम मैरीटाइम की सिक्योरिटी कर रहे हैं, दोनों नेशंस अपने बॉर्डर की एक्सरसाइजेस करते हैं, हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस करते हैं, उन सब चीज़ों को ये क्या डिस्प्ले करेगा, ओके। नेक्स्ट, Introduction of Electronic Human Resource Management System. Union Minister Dr. Jitendra Singh announced in Rajya Sabha that the Union government has introduced a new electronic human resource management system. तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या अनाउंस किया राज्यसभा में कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब ये सिस्टम क्या है, ये एम करता है टू स्ट्रीमलाइन एंड एनहांस द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस मैटर्स थ्रू डिजिटल मीन्स। मतलब डिजिटल मीन्स के थ्रू ये लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। कैसे कि वो अपनी जो सर्विसेज हैं, क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने के बाद लोगों का क्या हो जाता है कि पैसे तो आ ही रहे हैं यार अकाउंट में। अब आप लोग IAS PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका ये माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आपको लोगों को सर्व करना है, आप उसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, ना कि हमारे अकाउंट में हर महीने पैसे भेजेगी गवर्नमेंट। सो आपके माइंडसेट में ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। तो ये हमारा एम इस एम क्या है इस चीज़ का, इकोनॉमिक ह्यूमन मैनेजमेंट सिस्टम का, कि हम मैनेजमेंट कर सके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सर्विस की डिजिटल मींस के थ्रू, जैसे कि बायोमेट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, और भी वेरियस चीज़ें हैं जिनसे हम उनको चेक कर सकें कि हाँ वो टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, अपना काम टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज सही से प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई अपनी पोजीशन का गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, ओके। नेक्स्ट,
रैपिडो बिकम्स यूनिकॉर्न विद फ्रेश $120 मिलियन फंडिंग। तो रैपिडो आपको पता होगा एक टैक्सी या बाइक सर्विस है, ठीक है। तो ये एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है with $120 million funding. In a display of growth, Indian space technology sector has reached new frontiers, securing a record-breaking $126 billion funding for 2020. ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे उसमें 7% इंक्रीज आया है 2022 में, एंड इम्प्रेसिव जंप आया अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रैक इन स्पेस टेको जियो रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के अंडर हमें ये पता लग रहा है कि इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ आई है, ठीक है। आपने देखा ही होगा MNCs हो गई, कितनी सेटअप हो रही है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर कितना बूस्ट हो रहा है। अब तो ई-व्हीकल्स भी आ गए हमारे उसमें, वैसे ही ऐसे न्यू स्टार्टअप्स भी बहुत सारी आ रही है। रैपिडो आप उसका एक पार्ट है, देख सकते हो, यूनिकॉर्न कंपनी है। तो ये कंपनीज क्या कर रही है कि ग्रोथ ला रही है, ठीक है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है इंडिया के लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का ग्रोथ बहुत अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए। ओके, नेक्स्ट, लेट कर्नल कबिलन साय अशोक, इंडियाज यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी एट ओलंपिक्स, लेफ्टिनेंट कर्नल। ओके, in a remarkable achievement, Lieutenant Colonel Kabilan Sai Ashok, serving Indian Army officer, have become the youngest Olympic referee in boxing. तो इनको क्या बना दिया गया है, यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग फॉर पैरिस ओलंपिक 2024. This milestone reflects that his exceptional dedication, integrity, high standards of the Indian Army. आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी भी स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट करती है। मतलब हमने देखा जैसे कि अभी जैवलिन वाले में आप मुझे नेम बताना कि कौन आया था जैवलिन थ्रो में, वो भी इंडियन आर्मी का ही एक बंदा है, ठीक है। तो उन्होंने तो हमारी कंट्री को बहुत सारे गेम्स में रिप्रेजेंट किया है इंडिया के लिए। अभी कौन सा मेडल लाए हैं वो बताना पेरिस ओलंपिक में। ओके, तो ये सब चीज़ें से शो होता है कि हमारी जो आर्मी है कितनी डेडिकेटेड है, प्रोफेशनल है, इंटीग्रेटेड है ना, ये सब चीज़ें। ओके, 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया का क्या है, 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, जो फोकस करता है स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। मतलब इंडिया और वियतनाम के, जो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था मैरीटाइम वाला, वैसे ही ये क्या करता है कि हमारे डिफेंस का जो चीज़ है उसमें हम कैसे कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, वो दिखाएगा, हमारी टर्म्स दिखाएगा, साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद कल्मिनेटिंग इन द साइनिंग ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट टू एनहांस ट्रेनिंग एक्सचेंजेस। हम अपनी ट्रेनिंग भी एक्सचेंज करते हैं, मतलब जैसे कि हमारी डिफेंस टीम उनको अपने स्टंट अपने वो बताएगी कि हमें ऐसे ट्रेन किया जाता है, हमारे ये तरीके हैं, ठीक है, हमारे ट्रेनिंग में ये चीज़ें कराई जाती है, तो उनको वो चीज़ें सिखाएगी। वैसे ही वो लोग जो उनके यहाँ चीज़ें सिखाई जाती है वो हमारे आर्मी, हमारे पर्सनल्स को सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में कॉपरेशन बढ़ेगी, एक्सचेंजेस होंगे। ये हमारे खाली एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं है, हमारे लिए वैसे भी अच्छा है। इसको हम सॉफ्ट पावर में भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इंडिया सिलेक्ट्स क्रू फॉर Axiom 4 mission ISS. India has announced the selection for 2 astronauts, Group Captain Shubhanshu Shukla and Group Captain Prashanth Balakrishnan Nair, for the upcoming Axiom 4 mission to the International Space Station. तो इंडिया ने 2 एस्ट्रोनॉट्स का नाम अनाउंस किया है, एक तो सुधांशु शुक्ला और दूसरा बालकृष्ण नायर, जो कि Axiom 4 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। द मिशन रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन स्पेस लाइफ कोऑपरेशन बिटवीन इसरो एंड नासा। तो ये जो मिशन है ये कोऑपरेशन दिखाएगा बिटवीन इसरो, जो कि इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एंड नासा, एज वेल एज एडवांसिंग इंडियाज ओन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट, RBL Bank launches RuPay credit card with UPI and NCMC functionality. तो RBL का जो बैंक है उसने अनाउंस किया है UPI, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो बहुत सारे और नेशंस ने हमसे देखकर UPI को भी हमसे लिया है, लॉन्च किया है। एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड,
सर्विस ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड इटसेल्फ। तो आरबीएल ने जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड जो वो बेचता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में पता होगा आपको रुपे वीज़ा ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड है उसमें उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। द ऑफरिंग कंबाइंस मल्टीपल पेमेंट कैपेबिलिटी इनटू अ सिंगल कार्ड। एक सिंगल कार्ड में हम मल्टीपल पेमेंट कैपेबिलिटी उसमें इंट्रोड्यूस की है। RBL Bank said that the new RuPay credit card will allow users to make seamless and secure UPI payments। इससे क्या होगा, हम सिक्योर और सीमलेस यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे, हैसल फ्री, मतलब कोई हमें उसमें दिक्कत नहीं आएगा अगर हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे होते हो तो कई बार आपके इंडियन कार्ड्स नहीं चलते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए ये आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट, इंडिया रैंक 39 इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। इंडिया को कौन सी रैंक मिली है, 39 इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज इट्स ट्रैवल एंड, कौन रिलीज़ करता है इंडेक्स को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि 2024 में इन्होंने रिलीज़ किया है, जिसमें इन्होंने इवेल्युएट किया है इंडिया स्टैंडिंग इन द ग्लोबल टूरिज्म लैंडस्केप। आपको पता है इंडिया का टूरिज्म बहुत फेमस है, मतलब इंडिया में आपने देखा होगा, आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ टूरिस्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। This index is a crucial benchmark for assessing the competitiveness and sustainability of tourism sectors worldwide। इंडिया को कौन सी रैंक मिली है, 39 पोजीशन मिली है इसमें, अमंग 119 कंट्रीज़। ये बहुत आपको नोट करने वाली चीज़ है कि इंडिया को इसमें कौन सी पोजीशन मिली है, 39, कितने कंट्रीज़ में से, 119 कंट्रीज़ में से। दिस रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ ओवरऑल परफॉर्मिंग अक्रॉस वेरियस इंडिकेटर्स, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं ना जिसकी वजह से हमारा टूरिज्म सक्सेसफुल बोल सकते हैं हम, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ का कल्चर हो गया, कल्चर सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है, और भी बहुत मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद लाइफस्टाइल हो गया लोगों का यहाँ का, और हमारा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बोल सकते हैं हम, जैसे कि हमने देखा होगा ऋषिकेश, गंगा आरती, हरिद्वार, ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट बाहर से बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये मतलब अट्रैक्ट करती है लोगों को यहाँ पे आने के लिए। तो ये हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स को शो करते हैं जो कि हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं। हमने देखा होगा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है जिसमें वो टूरिज़्म को प्रमोट करती है, तो ये हमारा सस्टेनेबल टूरिज्म सेक्टर को भी दिखाता है और कंट्रीब्यूट करता है कि हम अपने इंडिकेटर्स को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तभी हमें ये पोजीशन मिली है अभी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस। प्रेसिडेंट तो पता ही आपको द्रौपदी मुर्मू है हमारी, इन्होंने टू डे कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स एट द राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली को इनॉग्रेट किया है। ये कॉन्फ्रेंस किस लिए, ऑन वेरियस इशूज़ क्रूशियल फॉर शेपिंग सेंटर स्टेट रिलेशन। कॉन्फ्रेंस किसके लिए करी गई है, सेंटर स्टेट रिलेशन को दिखाने के लिए करी गई है और वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ावा देने के लिए करी गई है, उसको एडवांसमेंट लाने के लिए करी गई है। इसमें मुर्मू ने एम्फोसाइज किया है जो एजेंडा ऑफ कॉन्फ्रेंस एड्रेसेस इशू इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो प्रेजेंट मेनली इसमें क्या फोकस कर रही है हमारी, कि हमारे जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको फुलफिल कर पाएँ, उसको अचीव कर पाएँ, तो उन्होंने उस चीज़ पर फोकस किया है। एंड शी एक्सप्रेस होप दैट द डेलिब्रेशन वुड बी बेनिफिशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट। जो पार्टिसिपेंट हैं इसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं और जो है वो सब इसमें फुलफिल हो पाए, यही उनका मेन मोटिव है। नेक्स्ट, नोहा लील्स विन US men 10 मीटर ओलंपिक गोल्ड इन 20 ईयर्स। तो अमेरिकन स्प्रिंटर है नोहा लील्स क्लिंच गोल्ड इन मेंस 100 मीटर स्प्रिंट एट 2024 पैरिस ओलंपिक्स में इनको मिला है, एंड लीज फिनिशिंग जस्ट 0.5 सेकेंड्स अहेड ऑफ जमाइका किशन थॉम्सन। मतलब बहुत क्लोज गेम था, ठीक है, 100 मीटर स्प्रिंट में, और इन्होंने जमाइका के जो थॉम्सन है उन्हें बीट किया है कुछ सेकेंड से, 0.5 सेकेंड से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच क्लिंचेस फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल एट पैरिस 2024 ओलंपिक्स। इस बार हमने देखा है कि ओलंपिक्स रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आपको ओलंपिक्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, अपनी कंट्री के तो देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट दूसरी कंट्रीज़ के भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, माइंड में रखना कि हाँ आ सकता है ये चीज़। तो नोवाक जोकोविच को फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है, ओके, सर्बिया के। द 37-year-old टेनिस लेजेंड ओवरकेम स्पेन्स कार्लोस एल्क्राज इन ग्रिपिंग मेल सिंगल फाइनल रोलांड गर्ल्स
ऑन संडे, सीमेंटिंग हिज स्टेटस इन द एनल्स ऑफ टेनिस हिस्ट्री। तो इन्हें टेनिस में गोल्ड मेडल मिला है, जो कि इनके लिए मेन सिंगल्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने स्पेन के जो कार्लोस हैं उनको हराया है और टेनिस की हिस्ट्री में अपना एक नाम दर्ज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट। ओके, पीएम इनॉग्रेट्स द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। पीएम ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए कॉन्फ्रेंस। ओके, कहाँ पे, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर दिल्ली में। ओके, अराउंड 1000 डेलीगेट्स फ्रॉम अराउंड 75 कंट्रीज़ ने इसमें पार्ट लिया है, ये इम्पोर्टेंट है। And the ICA 2024 platform provides an opportunity for young researchers and leading professionals to present their work and network with global peers. Okay. इसमें जो रिसर्चर्स हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना काम प्रेजेंट कर सकें इसमें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, उससे उसके ग्रोथ से रिलेटेड इकोनॉमिक्स जो होंगे एग्रीकल्चर के, वो भी इसमें अपना काम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंदिरा रेजेस 5-year plan GDP growth forecast to 75%. India Ratings and Research has increased its forecast for India's GDP growth in 5-year FY25 to 7.5%. तो इन्होंने अपना एस्टीमेट ग्रोथ इंक्रीज करके 7.5% कर दिया है, जबकि इनका जो प्रीवियस एस्टीमेट था इन्होंने 7.1% का दिया था। अब इन्होंने किस फैक्टर्स पे ग्रोथ इंक्रीज करी है ये तो देखना पड़ेगा। दिस रिवाइज प्रोजेक्शन सरपासेस दैट RBI's फोरकास्ट टू 7.2% एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिक सर्वे एस्टीमेट ऑफ 6.5 to 7%। ओके, तो जो RBI और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ने भी जो हमें ग्रोथ रेट दिया था, जो कि था 7.25% बाय RBI एंड मिनिस्ट्री का था 6.5 to 7, तो इन्होंने उसको भी ऊपर सरपास कर दिया, उससे भी ज़्यादा दिया है, ठीक है। द अपर रिविजन है एट्रीब्यूटेड टू एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन कंजप्शन डिमांड ड्रिवन बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंक्रीज केपेक्स। तो ये इन्होंने क्यों इम्प्रूव किया है, जिससे क्योंकि इन्होंने देखा है कि कंजप्शन जो डिमांड है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के चलते हुए वो भी इंक्रीज़ हो रही है, तो वैसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इन्होंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। ओके, इंडियाज़ फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइंस टू 8.1% ऑफ फुल ईयर एस्टिमेट इन Q1 FY25. The Ministry of Finance reported that India's fiscal deficit for first quarter of 25 stood at 8.1% of the full year estimate. तो इन्होंने नोटिस किया कि जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है वो 8.1% है, a significant improvement for 25.3% इन द लास्ट ईयर। तो इन्होंने लास्ट ईयर में जितना देखा था उससे अब इन्होंने 8.1% का फिस्कल डेफिसिट देखा है, जो कि काफ़ी मेजर गैप देखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा है। दिस शार्प डिक्लाइन इज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज टैक्स कलेक्शन एंड हायर सरप्लस पेमेंट फ्रॉम द RBI। और ये हमने क्यों देखा है, क्योंकि इस बार जो टैक्स स्लैब्स चेंज हुए हैं, आपने देखा होगा बजट में जो टैक्स का चेंजेस आए हैं, मे बी टैक्स कलेक्शन की वजह से या सरप्लस पेमेंट की वजह से हो सकता है। द फिस्कल डेफिसिट अमाउंटेड टू रुपीज़ 1.36 लाख करोड़ बाय द एंड ऑफ जून 2024, इतना था एस्टिमेट किया था। ओके, RBI कैंसल लाइसेंस ऑफ 78 UCB सिंस 2014। तो RBI ने क्या कैंसिल किया है, 78 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस। क्यों? द महाराष्ट्र हैज सीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसिलेशन विद 36 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लूजिंग द लाइसेंसेस फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के कैंसिल हुए हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस, उसके बाद यूपी के, उसके बाद कर्नाटका के। In 2024 alone, 10 UCBs licenses were cancelled, affecting banks across Maharashtra, Karnataka, UP, Gujarat, Rajasthan, Assam and आंध्र प्रदेश। तो इन स्टेट्स को आपको याद रखना है जिन जिन के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस को रद्द किया है RBI ने। ठीक है, कुछ तो ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे जो उन्होंने देखे होंगे कि वॉयलेट हो रहे हैं मे बी, जिसकी वजह से लाइसेंस इन्होंने हटा दिया। झारखंड लॉन्चेस मुख्यमंत्री मयम सम्मान योजना। द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड led by Chief Minister Hemant Soren has unveiled a significant welfare initiative aimed at empowering women in the state। तो उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
सेट टू बी ऑफिशियली लॉन्च ऑन August 16, 2024 को। इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन पे इन्होंने ये लॉन्च किया है एम्पावर वुमेन को एम्पावर करने के लिए, विच इज़ द मेजर स्टेप टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल वुमेन अक्रॉस झारखंड। यू ऑल नो कि झारखंड में वैसे भी जो हमारा क्राइम बोल सकते हैं या फिर नक्सलाइट मूवमेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, और एजुकेशन रेट काफ़ी कम है अभी वहाँ पे, लिटरेसी काफ़ी कम है। उसके बाद हमें हेल्थ रिलेटेड भी देख सकते हैं, काफ़ी वहाँ पे लो चल रही हैं चीज़ें। तो उसके लिए ये अगर हम देखें कि वुमेन असिस्टेंस के लिए, वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया है, उनको एक योजना दी है। ओके, Janet Young re-elected Film Academy's president. Film producer Janet Young has been re-elected for the third time as president of the Academy of Motion Pictures, Art and Sciences. Alongside her re-election, several new board officers have been appointed to the key position with the Academy. तो Janet Young को president बना दिया गया है मोशन पिक्चर्स का। ओके, और भी उनके साथ बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स इलेक्ट किए गए, ये इतना इम्पोर्टेंट है। मूव इन टू नेक्स्ट, President Murmu's 6-day visit to Fiji, New Zealand and Timor-Leste. President Draupadi Murmu embarked a 6-day visit to Fiji, New Zealand and Timor-Leste. ठीक है, ये 3 जगह आपको याद रखनी है। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स के लिए उन्होंने विजिट किया, कोई ऐसे घूमने के लिए नहीं किया है। सो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के लिए उन्होंने विजिट किया है। दिस विजिट इज़ नोटेबल फॉर बीइंग द फर्स्ट बाय एन इंडियन हेड ऑफ स्टेट ऑफ टू फीजी एंड टिमोर-लेस्ट। पहली बार इंडियन स्टेट मतलब इंडियन नेशन से कोई इतने बड़े पोजीशन का आदमी वहाँ पे गया है फीजी और टिमोर-लेस्ट, क्योंकि ये इतने डेवलप्ड और या फिर बोल सकते इतनी बड़े कंट्रीज या नेशंस नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। मुर्मू विल होल्ड बायलैटरल मीटिंग्स विद फीजी कैटिनोर एंड प्राइम मिनिस्टर सेतवेनी रबुका। ठीक है, उनके साथ ये मीटिंग करेंगे। ओके, इंडिया अप्रूव्स 8 न्यू नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर। आपको पता है आजकल ये नेशनल हाईवेज का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। कनेक्टिविटी को लेके भी देख सकते हैं इसे हम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बोल सकते हैं कि ये फैक्टर्स हाई स्पीड हाईवेज बन रहे हैं। तो ऑन August 2024, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took a step towards enhancing the country's transportation infrastructure. Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Modi, approved the construction of 8 new national high-speed corridor projects. तो कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 8 न्यू नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये इम्पॉर्टेंट है। इंडियाज गोइंग एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपैंड इट्स रोड नेटवर्क टू मीट करंट एंड फ्यूचर डिमांड। आपको देखना पड़ेगा आजकल कि पहले तो हमारे पास रेल कनेक्टिविटी या फिर एयर कनेक्टिविटी ही ज़्यादा चलती थी। ठीक है, रेल तो मोस्टली आपको पता है हर क्लास के लोग उसमें ट्रैवल करते हैं, बट अब हम देख सकते हैं कि रोड कनेक्टिविटी बहुत मेजर पॉइंट बन गया है कि हर जगह पे आप देखोगे कि रोड कनेक्टिविटी हो रही है। ये हमारी फ्यूचर और करंट नीड्स को देखते हुए हो रही है कि हमें मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम अपना एक्सपैंड कर सके एरिया उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, सेलिब्रेशन ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024, इंडिया रिलीजेस कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इन अ सिग्निफिकेंट जेस्चर टू कॉमेमोरेट द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज सेट टू रिलीज ए स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प। तो पेरिस ओलंपिक्स को देखते हुए इंडिया अपने अलग से पोस्टेज स्टैम्प भी निकालेगा। ठीक है, इससे हम क्या शो करेंगे, हमारी इंटरनेशनल यूनिटी शो करेंगे, हमारी स्पोर्ट्समैनशिप शो करेंगे एंड इंडियाज एंथुजियास्टिक सपोर्ट फॉर ओलंपिक मूवमेंट। और इससे हम ये भी शो करेंगे कि हम कितना सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को भी और अपने जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी, कि उनको बढ़ावा मिले कि हाँ वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करे आगे। तो उनको सबको देखते हुए हमने एक पोस्टल स्टैम्प को स्टार्ट करने के लिए सोचा है। स्टार शूटर मनु बेकर सेट टू बी इंडियाज फ्लैग बेयरर इन क्लोजिंग सेरेमनी। तो मनु बेकर इंडियाज 2-time ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जो हमने पहले भी पढ़ा है, इनको क्या बनाया गया है, फ्लैग बेयरर क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। एक तो ओपनिंग सेरेमनी होती है पेरिस ओलंपिक्स में मतलब, और एक होती है क्लोजिंग सेरेमनी, तो इनको बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज फ्रॉम द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बेकर विल रिप्रेजेंट इंडिया एज द वुमेन्स फ्लैग बेयरर ड्यूरिंग द इवेंट। ओके, earlier star badminton PV Sindhu and age table tennis player Sharad Kamal were made the flag bearers in the parade at the opening ceremony.
ओपनिंग सेरेमनी में किस किस को बनाया गया हुआ था? पीवी सिंधु एंड शरद कमल को फ्लैग बेरर्स बनाया गया था। नेक्स्ट, आरबीआई रीअप्रूव्स एमडीज एंड सीईओज फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने रीअप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ इंद्रजीत कमोत्रा एंड गोविंद सिंह एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल बैंक एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, रिफ्लेक्टिंग द इफेक्टिव लीडरशिप एक्सपैंडिंग द बैंक्स ऑपरेशन एंड रीच। तो इन दोनों को आरबीआई ने हैज़ रीअप्रूव करा है इनके अपॉइंटमेंट को, जो कि पहले एमडी और सीईओ रह चुके हैं तो इन दोनों बैंक्स के, ठीक है, जिससे कि वो अपने बैंक ऑपरेशंस को और एक्सपैंड कर सके, अपनी लीडरशिप को और बढ़ा सके। आरबीआई हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सीएफएसएल टू सेट अप द यूनिटी एफबी इन जून 2024, और इन्होंने सीएफएसएल को भी अप्रूवल दिया था। नेक्स्ट, नेशनल हैंडलूम डे। तो नेशनल हैंडलूम डे, डेट, थीम और सिग्निफिकेंट, ये तीनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। ये कब बनाया जाता है? 7 अगस्त को बनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे, जिसमें हम ऑनर करते हैं हमारे हैंडलूम वीवर्स को, जिससे कि हम उनके जो इतना हैंडलूम हमारा अब डिग्रेड होता जा रहा है, बोल सकते हैं इतना विलुप्त होता जा रहा है मशीनरी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते, तो हम उनका जो रिच और डाइवर्स हेरिटेज है, इतने सालों पुराना जो हमारा हैंडलूम है, इंडियन हैंडलूम है, जो कि और कंट्रीज़ में भी इतना फेमस है, लोग यहाँ से ले के जाते हैं बाहर कंट्रीज़ में, ठीक है। हमारे हैंडलूम की वजह से हमारी कंट्री बहुत जगह पे रिप्रेजेंट भी करी जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे डाइवर्स इंडियन हेरिटेज और उनके लिए हम प्रमोट कर सके, इसलिए हमने हैंडलूम डे बनाना शुरू किया है। ये रिकग्नाइज करेगा सिग्निफिकेंस ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडिया सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप के लिए, उसको भी। नेक्स्ट, विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड इन पेरिस ओलंपिक। ये तो न्यूज़ आपने सुनी होगी, ये बहुत मतलब हॉट न्यूज़ रही है कुछ दिनों तक, तो कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था ड्यू टू हर मतलब कुछ ग्राम्स, कुछ केजीज़ के वेट के इंक्रीज़ के, 100 ग्राम्स और समथिंग उनका बड़ा हुआ आ रहा था वेट, जो कि बहुत नॉर्मल है एक एथलीट के लिए, यू नो, वेट फ्लक्चुएशन तो इतना तो बहुत नॉर्मल होता है, तो उसके चलते उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 50 kg गोल्ड कैटेगरी जो उनकी थी उससे, ठीक है, उनका 100 ग्राम वेट ऐसे आया था, उससे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, वरना वो गोल्ड मेडल के लिए उसमें फाइनल राउंड में आ गई थी, ठीक है। According to the competition rules, she will not be eligible for silver medal, leaving only gold and bronze winners in the 50 kg का, मतलब उनको किसी भी कैटेगरी में फिर उसके बाद रिकग्नाइज ही नहीं किया गया, उनको एलिजिबल ही नहीं माना गया, उनको सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नेक्स्ट, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एडविलिस लाइफ पार्टनर फॉर बैंक इंश्योरेंस। Capital Small Finance Bank and Edwilis Life Insurance have joined forces in bank assurance tie-up. This strategic partnership allows CSFB's 177 branches to offer Edwilis Life Insurance products, enhancing finance solution and expanding life reach. तो ये जो कैपिटल स्मॉल बैंक है, इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप कर ली है, जॉइंट हैंड्स कर लिए हैं इनके साथ, एडविलिस बैंक के साथ, ठीक है, एंड ये एक प्राइमरी बैंकर टू मिडिल इनकम कस्टमर्स के लिए है एक्चुअली बैंक, और ये वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी देता है, मतलब बहुत सारे उनको ऑफर्स देता है बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड। नेक्स्ट, हरियाणाज ग्राउंड ब्रेकिंग एमएसपी पॉलिसी, अ न्यू एरा फॉर फार्मर सपोर्ट। एमएसपी तो आपको पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, इन्होंने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया है दैट कुड रीशेप एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया। आपको पता है 3 जो हमारे बिल आए थे एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके, एंड प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और ये कंटेंट लाते हैं आपके लिए, जिससे कि आप वन स्टॉप सोल्यूशन में हर चीज़ को कवर अप कर सकें, ओके, क्योंकि आपको पता है न्यूज़पेपर पढ़ना और फिर बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना बहुत टाइम हैक्टिक हो जाता है, तो ये आपको मंथली मैगजीन इसलिए प्रोवाइड करी जा रही है जिससे कि आप फटाफट रिवीजन कर सको उन टॉपिक का जो आपसे छूट भी जाते हैं, क्योंकि हर टॉपिक होता है कि हम क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर से मिक्स करके वीडियोस लाते हैं, ओके, और कुछ आपके टॉपिक्स होते हैं जो छूट भी जाते होंगे इसमें, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी उन टॉपिक्स को कवर करने में और आपको सब्जेक्ट्स को लिंक करने में भी, क्योंकि जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं
वो आपके सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स को लिंक करते हुए आता है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप वीडियोस देखें, अपने सब्जेक्ट में भी उन पॉइंटर्स को ऐड करें, ठीक है। ओके, तो द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट्स इंटेंशन टू परचेज ऑल क्रॉप्स एट एमएसपी, ठीक है, मेकिंग हरियाणा द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव एमएसपी पॉलिसी। इन्होंने बोला है कि हम सारी क्रॉप्स को एक एमएसपी डिक्लेयर कर देंगे, उस पर हम बाय करेंगे, और ये फर्स्ट स्टेट बनेगी कंट्री की जिसने एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है। दिस बोल्ड मूव कम एट क्रूशल टाइम जस्ट अहेड ऑफ अपकमिंग असेंबली इलेक्शन। तो पता है इलेक्शन से पहले ऐसी चीज़ें तो आई जाती हैं, एंड इट इज़ सीन एज अ स्ट्रैटेजिक एफर्ट टू रीगेन पॉलिटिकल ग्राउंड। और ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अपना एक पकड़ बनाने के लिए मुझे लगता है ये स्टेप लाया गया है, जिससे कि वो ये दिखा सके कि हाँ हम करते हैं। क्योंकि आपको पता है फार्मर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, ज़मींदार, मतलब ये ना बहुत बड़ा ग्रुप है जो कवर करता है हरियाणा, पंजाब, इनकी पॉपुलेशन को। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जिससे कि वो अपना एक पॉलिटिकल दबदबा बनाने के लिए करा गया है बेसिकली। ₹920 करोड़ नमामि गंगे मिशन 2.0 प्रोजेक्ट्स इन यूपी एंड बिहार। तो 920 करोड़ का मिशन मतलब 920 करोड़ प्रोवाइड करे गए हैं नमामि गंगे मिशन 2.0 को यूपी और बिहार में, जिससे कि हम सेक्रेड रिवर गंगा को कंजर्व और रिजुविनेट कर सके, मतलब उनकी सफाई, उसकी कंजर्वेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए। एंड ये किसके अंदर है? नमामि गंगे मिशन 2.0, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 2024-25। और मेन स्ट्रीम कहाँ पे है इसकी? बिहार, मतलब बिहार यूपी उसके मेन एरिया के लिए करा गया है। एंड एफर्ट्स टू कर्ब पोल्यूशन एंड एनहांस इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इसलिए करा गया है कि जो पोल्यूशन हो रहा है, जो गंदगी फैलाते रहते हैं लोग, आपको पता ही होगा गंगा में तो मतलब पाप तो धुलते ही धुलते हैं, उसके ऊपर से लोग इतना चीज़ें उसमें डाल देते हैं, मतलब बिना सोचे समझे कि भाई आप अपनी ही जो ये जिसको आप सेक्रेड रिवर बोलते हो उसको ही आप गंदा कर रहे हो, ठीक है। उसकी ट्रिब्यूटरीज गंदी होती हैं, फिर आप उसमें अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट भी डाल देते हैं, कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ ये सब भी कर देते हैं। तो उस चीज़ को रिजुविनेट, उसको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट को 920 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। एंड वैसे भी एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस और कुंभ मेला, उनके इम्पोर्टेंस से भी, कल्चरल इम्पोर्टेंस से भी अच्छा स्टेप है नमामि गंगे को के थ्रू। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया अनाउंसेस मैत्री ग्रांट्स फॉर रिसर्च एंड कल्चरल कोलैबोरेशन विद इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने क्या अनवील किया है? एक मैत्री रिसर्च एंड कल्चरल पार्टनरशिप ग्रांट दिया है, जो कि एम करता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कोलैबोरेशन को, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को, रिसर्च, आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स, एनर्जी, इन सब चीज़ों में। ओके, मिनिस्टर पेनी वोंग praised the initiative for strengthening bilateral ties, emphasizing the importance of human connection in the relationship। तो इससे हमारे ना कि bilateral ties बल्कि human connections भी improve होंगे, emphasize किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस टू लीड बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। तो नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश के, वो क्या करेंगे? लीड करेंगे हमारे इंटरिम गवर्नमेंट को आफ्टर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना स्टेप डाउन। आपको पता है शेख हसीना फ्लेड कर गई हैं कंट्री से, क्योंकि वहाँ पे मास अपराइजिंग हो गई थी, बच्चों ने कर दी थी, लोगों ने कर दी थी मास अपराइजिंग, दंगे फसाद हो गए थे मतलब, तो वो वहाँ से भाग गई हैं। तो उसकी जगह पे कौन आएंगे? मोहम्मद यूनुस उनकी जगह लेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। अनाउंसमेंट कब हुई है? अगस्त 2024 में। केम फ्रॉम जनरल एमरिडन, द प्रेस सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने इसको प्रेस रिलीज में शायद बोला है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस एक्सपोर्टेड टू पोलैंड। तो इंडिया का पहला जीआई टैग, आपको पता है जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जीआई टैग्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इंडिया का जो जीआई टैग फिग जूस है उसको एक्सपोर्ट किया गया कहाँ? पोलैंड को। पुरंदर हाईलैंड कंपनी है जो कि इन्होंने करा है जीआई टैग फिग जूस को पोलैंड एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड हांगकांग गया है ये जीआई टैग जूस 2023 में। एंड फेमस फॉर, किस लिए इम्पोर्टेंट है पुरंदर फिग्स जिसको जीआई टैग मिला है? इसके टेस्ट, साइज, न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है इसकी, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। ओके,
अब इसके आगे के जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ इसको शेयर करें, जिससे कि आप इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें, आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सकें, इससे बेनिफिट ले सकें। एंड और भी आप हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपसे डिस्कस करें। ठीक है, एंड secondly you can visit our website, you can visit our center for more such you know आप हमारे यहाँ एनरोल कर सकते हैं, हमारे यहाँ आके क्लासेस ले सकते हैं, डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और हम आपको ISPCS और CSAT और ऑप्शनल सब्जेक्ट सबके लिए कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे एंड 1-to-1 कॉन्वर्जेसन भी होगी, क्लास में भी होगी। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आप बस पढ़ रहे हैं और आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं वो वहीं पे सॉल्व किए जाएंगे। सो प्लीज़ डू कम, डेमो क्लास लीजिए, आइए एंड ये ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करिए। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं एंड टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। विल डिस्कस इट लेटर। ओके, थैंक यू सो मच।